Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th and today we will see the in mathematics chapter number 4, and this video is your part maybe 7th part. This is part 4 ka. Let us see. Of course this is part 7 of chapter number 4, and in this part what we are going to see some conditions. ओके हम क्या देखने वाले हैं? कुछ कंडीशंस. किसके लिए? कंडीशंस ओके फॉर सॉल्वेबिलिटी. यहाँ पे ये फॉर सॉल्वेबिलिटी. व्हाट? सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. कंडीशंस वी आर गोइंग टू सी फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन. अब तक हमने सॉल्व किया लीनियर इक्वेशन को, लेकिन अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे. व्हाट आर द कंडीशंस अप्लाई? ओके अर्लियर व्हाट सपोज वी हैव अ लीनियर इक्वेशन लाइक a1x ओके प्लस b1y. यहाँ पे b1 है, b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एंड वी हैव a2x ओके प्लस b2y plus c2 equal to 0. This is our second equation, and I told you that this system of two linear equation will be okay what? Consistent when this system has at least how many? One okay solution. Then it is said to be consistent. When it is said to be inconsistent, okay, inconsistent, I told you, then this system of two linear equation has no solution at all. No solution at all मतलब इसका कोई solution ही ना हो. So these conditions we have learned. Now हमारे पास यहाँ पे कोई linear equation रहता है. okay linear okay equations रहते हैं. okay system of two linear equation रहता है. और फिर इसका क्या होता है? ये या तो क्या हो सकता है? कंसिस्टेंट हो सकता है, कंसिस्टेंट हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है? इनकंसिस्टेंट हो सकता है. इनकंसिस्टेंट ओके जब कंसिस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे. और जब ये इनकंसिस्टेंट देयर विल बी नो ओके सॉल्यूशन. देयर विल बी नो सॉल्यूशन. जब यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे दो तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है. पहला ओके यूनिक सॉल्यूशन. what is that? Unique solution. And here you have infinitely many solution. Here you have no solution case. Now we will see some conditions for all these okay cases. Unique solution तब होगा जब आपके पास, अगर आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या क्या है यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. a1x ओके प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. और आपके पास क्या है? a2x प्लस यहाँ पे b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. these are the two okay linear equation system. so this will be unique solution when a1 by a2 will not be equal to okay b1 by b2. in that case what we can say? there will be unique solution. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? a1 by a2 is equal to okay b1 by b2 which is equal to what is that? c1 by c2. it is equal to c1 by c2. okay and what about the no solution condition? here a1 by okay sorry a1 by ओके a2 तो इक्वल होगा किसके? b1 बाई b2 के, बट ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा. सो a1 बाई a2 विच इज इक्वल टू b1 बाई b2 विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. सो दीज आर द कंडीशंस ओके फॉर व्हाट? these are the conditions for solvability of linear equation.
whenever you have okay two linear equation and the system, and you can say that the system will be consistent and the system will be inconsistent. In which case system will be consistent जब वहां पे at least one solution रहे, मतलब यहाँ पे solution है, यहाँ पे क्या है inconsistent मतलब there is no solution at all. So ये no solution वाला केस चले गया. अब ये जो है यहाँ पे आपको यूनिक सोल्यूशन वाला केस हो जाएगा और यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन केस हो जाएगा. यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन के लिए आई टोल्ड यू दैट a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then you can say that okay the system has a unique solution. Okay, next when a1 by a2 okay is equal to b1 by b2 which is equal to c1 by c2, then you can say that this system has infinitely many solution. When a1 by a2 it is equal to b1 by b2 but that is not equal to c1 by c2, then you can say that system okay has no solution at all, and this system of linear equation is what? Inconsistent. यहाँ पे ये क्या है? Inconsistent है. Remember that point. Inconsistent है, ये क्या है हमारा? Consistent है, ये consistent है. तो this hierarchy you have to remember. Okay, this hierarchy you have to remember. Do not forget. Okay, no one is going to explain. This one is very clearly to you. Now let us see some more conditions for the homogeneous. Okay, what I am telling you, homogeneous system of equation. अगर आपके पास अगला है homogeneous system of equations. होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे ये है, ठीक है. ओके फाइन. सो नाउ you can write okay what the system okay of equation, the system of equation, what is that? a1x plus b1y plus which is equal to okay 0, और आपके पास है a2x plus b2y which is also equal to 0. So then this system has okay, then this system has first one, the zero solution. What do you mean by zero solution? That means x is equal to 0 and y is equal to 0. So when ये कब होगा zero solution? जब आपके पास ये homogeneous है तो zero solution कब होगा? When a1 by a2 which is not equal to b1 by b2, then you will get zero solution. That means x and y both value will be 0, and आपके पास infinitely okay infinitely number of what okay non-zero solution you will get. non-zero solution you are going to get when a1 by a2 is equal to what? b1 by b2. यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये क्या है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. कैसा? होमोजीनियस. जैसे कि a1x plus b1y equal to 0, a2x plus b2y equal to 0. Then this system has okay first case zero solution, second case infinitely number of non-zero solution. जीरो सोल्यूशन मतलब ये x0 दोनों y0 दोनों हो जाना है. कब? इसका कंडीशन क्या है? a1 by a2 is not equal to b1 by b2, but a1 by a2 when it is equal to b1 by b2, then you will get infinite number of non-zero solution. Sorry. Okay, so this is all about the homogeneous system of equation, and earlier we have seen okay from here we have started, and in this we started with the conditions for the solvability of linear equation. Okay, here we have a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and another a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and we have already seen that what is consistent, what is inconsistent. Okay, at least one solution rahe to consistent, there is no solution, then that is the inconsistent.
कंसिस्टेंट। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन है, तो सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस के आपके कंडीशंस क्या है, कंसिस्टेंट और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब देयर विल बी सम सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट देयर विल बी नो सॉल्यूशन। देयर विल बी सॉल्यूशन, देयर विल बी टू केस, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या है, कंडीशन क्या है, a1/a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2, बट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस क्या है, a1/a2 विच इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू c1/c2। okay, that is the case. But when in the case of inconsistent, there will be no solution, and the condition for the no solution is a1/a2 which is equal to b1/b2, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। So this is all about the formulas. Let us do some problem. Okay, here we have a question. What is that? Show that what, 2x plus 5y equal to 17, and another equation we have 5x, what is that, plus 3y which is equal to 14. These two linear equation, okay, we have to show this has what, unique solution. okay, unique solution. अब हमको इसको यूनिक शो करना है, तो हमारे पास ये आपको मालूम है कि यूनिक का केस क्या होता है, a1/a2 ओके इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे ये केस होना चाहिए। हमारे पास a1 क्या है, ओके 2 है, हमारे पास a2 क्या है, 5 है, b1 क्या है, 5 है, और b2 क्या है, b2 क्या है यहाँ पे, एक मिनट में इसको क्लियर अच्छा कर देता हूँ, और b2 क्या है हमारे पास, 3 है। सो 2/5 विच इज नॉट इक्वल टू 5/3, 2/5 विच इज ओके नॉट इक्वल टू 5/3, a1/a2 okay which is not equal to b1/b2. Hence what we can say, simply hence we can say that okay, system of equation, what is that, system of equation has a unique okay unique solution. और यहाँ पे c1/c2 की वैल्यू भी आप देख लो, c1 क्या है आपके पास -17 और c2 क्या है -14, क्योंकि ये इधर चले जाएगा ना, बिकॉज a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में आपको इसको लिखना है, तो -17 -14, तो ये चीज मैं अगले पेज पे। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द सोल्यूशन, वो सोल्यूशन क्या है, मतलब x और y की वैल्यू क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना। लेट अस डू इन द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास क्या था, a1 इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 2, और a2 इक्वल टू क्या आया था हमारे पास 5। नेक्स्ट b1 इक्वल टू हमारे पास क्या आया है 5 ओके, एंड b2 इक्वल टू हमारे पास क्या है 3। c1 इक्वल टू व्हाट वी हैव गॉट -17 एंड c2 इक्वल टू हाउ मच वी हैव गॉट -14। आई टोल्ड यू कि वहां पे हम लोगों के पास क्या था, जो x और y की जो वैल्यूज मैंने आपको बताया था, एक मिनट में इसको इसको मैं इरेज कर देता हूं। चलिए यहाँ पे आपका x हो गया, ये y हो गया, ये 1 हो गया, ये x मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे a1 a2। चलिए आप यहाँ पे b1 से स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, b1 b2, यहाँ पे c1 c2 -17 और -14, फिर यहाँ पे a1 a2, और फिर यहाँ पे क्या लिखना है b1 b2, ठीक है, पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, x बाई हाउ मच, x बाई -14×5 हो गया, लेकिन माइनस में, और ये माइनस साइन हो जाएगा आपके पास, और ये 17×51 -51 विच इज इक्वल टू, चलिए मैं इसको एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ओके येलो कलर से, सो दैट ये समझ में आए, ठीक है। चलिए ओके कूल। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, अगेन ये डाउनवर्ड 17×85 दैट इज -85, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा 14 दूनी का 28, और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 1 बाई ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, -5 5 जा कितना हो जाएगा, ओके -5 5 जा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस। चलिए मैं ऊपर से अब इरेज कर देता हूँ, ये वैल्यू मैं आपको इरेज कर देता हूँ,
ओके ठीक है, चलिए अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये देखिए x हो जाएगा, ये x बाई कितना हो जाएगा -70 और माइनस माइनस प्लस 51 हो जाएगा, और ये y बाई कितना हो जाएगा -85 तो वैसे ही है, और ये प्लस 28 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा 6 माइनस 25। तो अभी आपके पास x बाई माइनस कितना हो जाएगा, x बाई माइनस हाउ मच -19 हो जाएगा। अगेन y बाई आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 57 हो जाएगा, एंड y बाई आपके पास -19 हो जाएगा। देख लीजिए, अब मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, अब हम पूरे इरेज कर देते हैं। आप वीडियोस को प्लीज़ बैक करके आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 1 9 आ गया, 6 में से 5 1 आ गया, ये सही है। फिर 7 आ गया और 7 to 5 आ गया, ये भी सही है और ये भी सही है। तो चलिए आप -19 को इससे इक्वेट कर दीजिए। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो सीधा आपके पास x इक्वल टू 1 आ गया। अब आप y इक्वल टू -57 से 1 बाई -19, ये देखिए 3 टाइम्स में कट गया, मतलब y इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। सो हैंस x इक्वल टू क्या आ गया 1 और y इक्वल टू क्या आ गया 3। सो यही है वो सॉल्यूशन जो वो पूछ रहा था। ओके, मैंने यहाँ से डायरेक्ट मैं इस पेज पे गया, मैंने इरेज कर दिया सब वैल्यू को कैलकुलेट करने में। आप देख लीजिएगा x इक्वल टू क्या आया 1 और y इक्वल टू 3 आया है। सो यू हैव गॉट द आंसर हियर। द वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये वाला तो समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए B1 B2 लिखते हैं, यहाँ पे C1 C2 लिखते हैं, यहाँ पे A1 A2 लिखते हैं, यहाँ पे फिर B1 B2 लिखते हैं, और फिर हम इसको पहले यहाँ पे कर लेते हैं क्या x बाई, एक मिनट इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे x बाई B1 C2 क्या करते हैं B1 C2 माइनस B2 C1 विच इज इक्वल टू ये y बाई C1 A2 माइनस क्या C2 A1 विच इज इक्वल टू 1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। सो ये है, ये आपको आना चाहिए लिखना। प्लीज डू प्रैक्टिस। ओके, आप प्लीज x बाई B1 C2 B2 C1 करिए, आप ये बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको जरूर आएगा। प्लीज सॉल्व द एक्सरसाइज प्रॉब्लम। आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स है पूरे इसी पर है, कुछ भी नया नहीं है। अब आप प्लीज सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, अगर कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो प्लीज यू कैन आस्क मी, यू कैन डायरेक्टली। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले कुछ प्रॉब्लम के साथ कुछ अगले वीडियोस में।